I don't come from a well-off family, and growing up, I was being told only one thing, that you need to study hard and get a good job. But I blundered in that too. My name is Ritik Jaiswal, and I'm recording this to share my journey on how I grew over making 15,000 a month to 5 lakhs a month now as a remote software developer, being from a mechanical background. So I'll start from the beginning. I always been told in my childhood by my parents basically to always study hard and get good marks, so that you will be able to get a good job at the end and provide a good life for us. I have never been exceptionally talented in something, nor good in studies, nor good in sports. I was just average in almost everything. Until 10th, I was a good kid. I was able to mug up things and get good grades. After 10th, I flunked up my 11th standard and I failed in maths as well. But somehow I was able to work hard in 12th and get decent marks in my 12th standard. That was around 81%. By in 10th, I got like a 9.2 CGPA, which was considered to be good in CBSE. My family didn't knew anything about engineering and how being a software engineer works. I did not prepare for even IIT or JEE mains, and I did not even fill out the form for the JEE mains because I wasn't aware about it. Somebody from in my distant cousin told me about merchant navy as a profession where I can earn good. So I decided to I will go in that direction, but that didn't complete it and didn't carry forward. So that's why I had to somehow do something. And in 12th, I was able to get decent marks in computers and maths. So my parents asked me to pursue engineering in from hometown, and उसका मेरा मन भी नहीं था, to be honest. But I decided to do that because again, someone from my relative cousin was also pursuing engineering and got a good job in Bangalore or something, and now is earning also good. So that's why I think that would be the mindset of my parents as well. So I entered a tier 3 college in my local town, Dehradun. That college also fees also was like too quite high, uh, as compared to my family's background. So they just wanted me to be successful, that's it. So somehow they managed to get me admitted into this top university in our hometown. And I entered there. I tried to study, but the faculties were not good. Like, I'm saying faculty is not good is not even the topic. वहाँ की faculties were, I think they don't know how to teach things. If I, let's say, if I would have been much interested in that time, मैं खुद से ही बहुत अच्छी CS कर लेता. But during that time, the faculties that we were assigned were not good, to be honest. So but basically after spending my first semester, I actually got very good grades as well as GPA as well. But I got more interested in mechanical engineering stream, just because I'm interested, already had a good background and understanding of physics. So मैंने decide किया कि I'll change my stream from computer science to mechanical engineering, and that was the biggest mistake of my life, I'll say. Basically, to give a background, four friends of mine decided to do this, and we decided to change our stream from computer science to mechanical. One of them was also Karthik Sharma. So if you don't know, I also recently appeared in one conversation, one YouTube channel of my friend named Karthik Sharma, and that's only motivated me to record this journey. So if you haven't checked it out, you can check it out as well. Yeah, so coming back to the story, we four friends decided to switch our streams from computer science to mechanical. Karthik, Vaibhav, and there was one more guy, Ajay. So we all four decided to do that, but I think Karthik and Vaibhav switched back to CS again after 2 days studying thermodynamics. And maybe they had like different plans in their life, because they already had like an exposure in their family जो CS background में थे. So they knew like what is actually happening around in computer science and how much our people are able to make. But for me, my perception was कि if I am able to be at the top percentage of any stream that I really enjoy, I'll be able to earn good.
बिकॉज सी एस में मुझे इंटरेस्ट नहीं था. इवन दो आई विल बिकम अ सी एस इंजीनियर, तो आई विल बी अ वेरी बैड सी एस इंजीनियर, बट मेरे को मैकेनिकल में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट था. So I decided to pursue that. पर and there was a clean record also कि हमारे सीनियर मैकेनिकल में he was able to get like a 6 LPA package, and मेरे उस टाइम पे तो मेरे लिए ये 6 LPA भी बहुत था. So अगर मैं somehow I am able to earn around 50,000 a month, मेरी life set है. That was my thinking at that time. So I continued in mechanical engineering from my second year. और these two guys actually switched back, and किसी तरह I was able to complete my engineering. And I think mechanical engineering again is my worst decision also, because जैसे ही मैं mechanical engineering stream में घुसा, I went into a very tragic accident जिसमें मेरी सर्जरी भी हुई थी रिस्ट की. So it was a very bad time for me. मैं डिबार्ड भी हो गया जैसे ही घुसते ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3rd सेमेस्टर में, एंड इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. मैंने ट्राई भी किया टू अरेंज सम मेडिकल एंड ऑल, बट लाइक आई कैन नॉट से लाइक कुछ फैकल्टीज़ का ईगो बहुत होता है, तो पता नहीं, बट ए डिबार्ड मी इन ओनली वन सब्जेक्ट. एल्स प्रोबेबली अगर मेरी उस सेमेस्टर में अच्छे ग्रेड्स आए होते तो आई वुड हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माई कॉलेज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट तब भी मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तो बन ही गया था. सो आई 4th ईयर आई वॉज ट्राइंग टू prepare for GATE as well, but main ambition was to get into some thermal analysis field. So and I had published like 2 research paper also in my 4th year. So मेरे को plan था कि I will pursue something in that direction. And अगर सबका कुछ सही होता तो I was also planning to go and do an MS in Germany. Even my faculty was aligned with that and he was helping me out. But lockdown happened actually, and COVID की वजह से my family also has to bear some business loss, and हमारे in general उस टाइम पे काफ़ी financial condition ख़राब हो गई थी. So also again by the 4th year I thought मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट प्लेसमेंट्स आएंगी, बट इन जनरल उस टाइम पे मैकेनिकल सेक्टर की जॉब्स भी बहुत कम हो गई थी, एंड पहले से ही मैकेनिकल में जॉब्स नहीं होती, तो उस टाइम पे मेरे कॉलेज में भी कोई कंपनी नहीं आई, एंड आई वाज नॉट एबल टू कन्वर्ट, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग एट गेट ऑल्सो एट दैट टाइम. सो मेरे सारे प्लान शट डाउन हो गए थे. आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, बिकॉज मैं CS से मैकेनिकल में स्विच हुआ था, एंड आई हैड दैट बर्डन इन ईगो एज वेल that I need to prove myself that I will be able to make good thing in mechanical engineering. तो मैंने फिर decide किया कि when I started hearing people in 4th year that they are getting good placements, उनकी किसी की 6 लाख किसी की 7 लाख लग गई है, और मेरे को तो अभी तक कंपनी का ऑफर ही नहीं आया. So it felt very bad. So I decided okay I will just stop, and मैंने भी कैंपस ड्राइव्स में बैठना स्टार्ट किया फॉर द CS. ऑलरेडी नो C++ इन माई 11th-12th, तो मुझे बस उसको थोड़ा ब्रशअप करना था, एंड अराउंड 2-3 months टाइम में आई वॉज एबल टू गेट एटलीस्ट ऑफर फ्रॉम TCS एंड कॉग्निजेंट. वो इनका इंक्यूटेड ड्राइव होता है, एंड TCS के 3-4 लाख वाले पेपर्स जो होते हैं, आई वॉज एबल टू क्लियर 2 of them. तो आई वॉज हैप्पी, एटलीस्ट मैं घर पे कुछ दिखा सकता हूँ कि मेरे घर वालों ने इतनी फीस दी है, तो एटलीस्ट आई एम एबल टू गेट अ जॉब आउट ऑफ माई कॉलेज. तो आई हैड अ गिल्ट एज वेल कि मैं कोई अगर कुछ नहीं कर पाया इसके बाद, तो वुड इट मेक सेंस टू कॉल माई सेल्फ अ स्टूडियस किड. मैं बचपन से मतलब काइंड ऑफ अच्छा बच्चा रहा हूँ, उसके बाद भी आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. तो वो गिल्ट की वजह से आई स्टार्टेड left my GATE preparation and appeared for this interviews. जैसे ही अराउंड दिसंबर मेरा प्लेसमेंट हो गया था, आई स्टार्टेड बैक GATE प्रिपरेशन अगेन. या बट एक्चुअली उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. आई फ्लंक्ड माई GATE एग्जाम ऑल्सो. आई स्कोर्ड अराउंड 31, मेरे ख्याल से 33 कट ऑफ था, तो उसमें तो कुछ मिलना ही नहीं था मैकेनिकल में. कॉग्निजेंट जब क्लियर किया था, उसका इंटर्नशिप उस टाइम पे आ गया था जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन. सो मैंने कहा कि एटलीस्ट में मेरे को फर्स्ट पैसे मिल रहे हैं, दैट वाज 15,000 पर मंथ. सो आई जॉइंड इट वर्चुअली, बिकॉज टाइम पे कोविड चल रहा था, तो वरना अदरवाइज हमको कोची जाना पड़ता, बट मैंने रिमोटली कर लिया था. तो ओवर दैट टाइम अराउंड 1 or 2 months आई स्टेड देयर. आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. some mentor there were teaching UI engineering, basically front end जो हम बोलते हैं, but सिर्फ HTML CSS. So I got really interested in that. मेरे को मज़े आने लगे, तो मैंने 1-2 महीने अच्छे से सीखा, but parallelly I was also looking out for more mechanical jobs, जो कि नहीं हुआ. I reached out to my seniors in Oppo and in other companies जहाँ पे मुझे basically मिल जाए, and everybody was just suggesting me to leave mechanical and just go with the computer science if you know coding.
And after that, like after 2 months, I got a full-time offer from TCS directly. They don't have any concept of like I think internship and all. So मेरे पे option था कि just when my BTech get like completed on June, मेरे को 8 offer था, and most of my at that time most of the folks in mechanical engineering was unplaced. So at least I had that liberty कि मेरे पे job तो है, वो भी दो. So people like my faculty suggested me to do that and go in that, and they said that if I'm able to get in there, maybe मेरे को mechanical से related design projects ही मिल जाएंगे TCS में. So I entered there. I tried to connect with lot of people जो मुझे mechanical के लिए guidance दे देंगे. I connected with a folk which is very well established in his mechanical field. 3-4 मतलब 9 years of experience I guess. And उन्होंने भी मुझे बोला कि I am also trying to change my career to computer science. And क्योंकि भाई यहाँ पे पैसा नहीं है तो तुम भी वेस्ट मत करो अपना टाइम. And that like broke my heart because मैंने बहुत मेहनत करी थी उसके लिए. पर I don't know. I think that was also a reality check for me कि पैसे कमाना and passion follow करना are two different thing, and you don't have to mix it up. So that time I realized okay यार अब बहुत हो गया है. I should just focus on learning core computer science and coding start करते हैं and उसमें ही पैसे बनाएंगे. भले आई एम ऑलरेडी लेट नाउ, आई एम ऑलरेडी 4 years लेट, बट स्टिल अगर मैं अभी भी स्टार्ट करूँगा तो एटलीस्ट 1-2 साल में आई विल बी एबल टू रीच देयर वेयर माई फ्रेंड्स आर राइट नाउ. सो आई स्टार्टेड देयर. मैंने ट्राई कर रहा था कि मैं जावा सीख लूँ बिकॉज इंटरनली TCS में एग्जाम्स होते रहते हैं अबाउट टू कन्वर्ट योर पैकेज टू फ्रॉम TCS निंजा टू डिजिटल इफ़ यू नो. तो 3 LPA से 7 LPA में प्रमोशन के लिए मैंने उसका भी पेपर दिए, बहुत ट्राई भी मारे. बट क्योंकि आई थिंक मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ है कि जब मैंने किसी चीज़ में शॉर्टकट मारने का ट्राई किया है, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब ही हुआ. सो मैंने फिर रियलाइज़ करा कि आई शुड नॉट डू शॉर्टकट्स एंड शुड लर्न प्रोग्रामिंग अ प्रॉपर वे. एंड जब मैंने वो करके दिया आफ्टर 6 months बीइंग इन TCS, तो उनका कोई सिस्टम में कुछ इशू आ गया एंड मेरा पेपर कुछ तो फ्रॉड में चला गया, प्लेजराइज में चला गया, एंड मैं नहीं कर पाया कन्वर्ट. फिर से मेरे साथ कुछ ना कुछ गलती हुआ, पोपट हुआ यार. सो हाँ, बाय द वे मैं TCS में जब तक मैं कर रहा था वी कैन नॉट स्टे इन बेंच, तो मेरे को एक ऑफर मिल गया था इंटरनल प्रोजेक्ट से टू डू टेस्टिंग. एंड आई थॉट कि यार चलो टेस्टिंग ही ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टर भी आई थिंक पैसे कमा लेते हैं अच्छे. एट दैट टाइम आई थॉट कि 10-12 लाख भी बहुत होता है. तो मैंने देखा है कि 5-6 साल में लोग 10-12 लाख कमा रहे थे, तो आई थॉट कि मैं भी वो भी परस्यू करूँगा. तो मैंने कुछ टाइम के लिए TCS में ऑटोमेशन टेस्टिंग भी करी फॉर अ ईयर ऑन SAP. एंड बट और 1 साल बाद के बाद मैंने ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने के बाद मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया टू डू माई फर्स्ट स्विच आफ्टर TCS. एटलीस्ट दैट्स वुड बीन टोल्ड कि अगर तुम्हें करियर ग्रो करना है तो तुम्हें स्विच करने पड़ेंगे फ्रीक्वेंटली. तो मैंने ट्राई करा एंड व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माई फर्स्ट इंटरव्यू, मुझे रियलाइज़ हुआ कि टेस्टिंग मुझे करनी ही नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग में पैसा ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट. एटलीस्ट मुझे ये लगा. तो वहाँ पे सीनियर बंदे हैं, उनकी सैलरी अब जाके उतनी हुई है जो कि मैं फर्स्ट ईयर पे मांग रहा हूँ. तो इतना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई विल नॉट डू दिस. इंस्टेड मैंने क्या किया, आई टुक अप वन कोर्स इन Udemy एंड स्टार्टेड लर्निंग फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि वो मुझे सबसे ईजी, सबसे फास्ट वे वही लगा घुसने का इन कोडिंग वर्ल्ड टू डू प्रॉपर प्रोग्रामिंग. तो और मैंने कॉग्निजेंट में सीखा हुआ ही था, तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से. वैसे TCS में मेरा ऑफर था उस टाइम पे 3.3 LP ऐसा कुछ था, तो 25,000 पर मंथ. तो आई स्टार्टेड देयर लर्निंग देयर. मैंने कुछ टाइम कोडिंग सीखी, प्रोग्राम सीखे कैसे होता है. देन वो Udemy से मुझे बहुत बोर हो गया, क्योंकि वो बहुत स्लो पढ़ा रहे थे एंड बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी. तो आई समबडी इन माई जिम advised me about learning from Namaste JavaScript, which is a very good playlist if you want to learn JavaScript. I'll recommend it 100%. तो मैंने वो सीखा. So I used to do a 7-8 hour shift remotely at that time because lockdown था, and then I used to learn 3-4 hours में playlist पढ़ता था. But it was taking me a long time because I was coming from a non-tech background, तो मुझको बहुत टाइम लगा to get my pace ready and start making things and start doing things. So प्लेलिस्ट में I was just stuck in tutorial है, but still मैंने कंटिन्यू करते करते over took like 6-7 months and I wanted to dive deep in React. तो yeah, by the way, like इस फेज़ के बीच में एटलीस्ट मेरा सबसे वर्स्ट फेज़ है लाइफ का, क्योंकि इस टाइम पे मेरे फैमिली में भी बहुत
हेल्थ इश्यूज चल रहे थे. माई मदर वॉज डायग्नोज विद सम डिजीज़, सो उसकी वजह से आई वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट 100% इन दिस थिंग बिकॉज आई नीड टू मैनेज 2-3 थिंग्स. तो किसी तरह बट समहाउ आई वाज ट्राइंग कि एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ से मुझे अगर बनाना है तो आई नीड मनी, एंड पैसा बनाने का तरीका मुझे यही दिख रहा था. एंड आई वॉज नॉट पैशनेट, नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग, बट स्टिल मुझे करना था क्योंकि आई वॉन्ट टू अर्न मनी एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली. तो किसी तरह मैंने करते करते टाइम लिया, 1 साल लगाया मैंने. एट दैट टाइम अक्षय सैनी ऑल्सो लॉन्च इज नमस्ते रिएक्ट कोर्स, मैंने वो बैच ज्वाइन करा. उसमें आई एक्चुअली लर्न अ लिटिल बिट मोर बिकॉज वहाँ तक अभी तक तो मैं सिर्फ प्लेलिस्ट देख रहा था. तो थियोरेटिकल नॉलेज थी पर प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं थी, क्योंकि कोडिंग नहीं करी थी. उसके बाद आई डिसाइडेड टू डू दैट. फिर उसके वंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट, मैंने इंटरनली बोल दिया कि मुझे स्विच करना है और प्रोजेक्ट्स के लिए. तो यूजुअली ऐसा होता है कि इन TCS और इन कंपनीज वी कैन नॉट स्विच प्रोजेक्ट्स इतना इजीली, क्योंकि देर आर टू मैनी रेगुलेशंस एंड ऑल. मैंने बहुत लोगों को पिंग किया, तब जाके आई वॉज एबल टू कन्वर्ट माई रोल फ्रॉम लाइक टेस्टिंग टू ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एक प्रोजेक्ट मिला, एंड बिटवीन दैट आई वाज आल्सो ट्राइंग टू पिक अप सम गिग्स हियर एंड देयर फ्रॉम टेलीग्राम. तो टेलीग्राम पे क्या होता था उस टाइम पे, कुछ ग्रुप्स होते थे जो पेड वर्क देते थे. मतलब पेड वर्क क्या, बेसिकली पेड हेल्प होती थी उसमें. तो पेड हेल्प में ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई सीनियर बंदे हैं जिनको कोई काम नहीं आ रहा, उन्होंने प्रोजेक्ट उठा लिया है, तो उनको हेल्प चाहिए. इवन आई फाउंड वन गाय हु वाज इन TCS ओनली, 9 years एक्सपीरियंस, और उनको हेल्प चाहिए किसी प्रोजेक्ट में रिएक्ट के बारे में, और उनको आता नहीं है. तो आई वॉज हेल्पिंग हिम एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ऐसे कभी कभी 1000 रुपये गिग्स मिल जाती हैं, कभी 2-3 हज़ार का प्रोजेक्ट मिल जाता था. तो आई वॉज जस्ट डूइंग दिस, एंड ऑल्सो उसी टाइम पे मेरे को भी कुछ नहीं आता था, बट आई वॉज जस्ट फेकिंग इट आउट कि मुझे आता है, एंड गिव मी द थिंग्स एंड आई विल बी एबल टू लर्न इट ऑन द गो. एंड फिर जब मेरे को प्रोजेक्ट्स में गया, तब आई रियलाइज्ड ओके, हियर पीपल विच आर ऑल्सो अर्निंग गुड एंड आर इन सीनियर पोजीशन, जैसे 10 लाख किसी का था, 20 लाख पैकेज भी था. तो those guys also don't know anything about coding. So I realized कि थोड़ा टेक इंडस्ट्री और टेक जॉब्स थोड़ी तो खोखली हैं, एंड इट्स अ वेरी हॉलो थिंग, एंड इफ़ आई प्ले माई थिंग्स राइट आई विल ऑल्सो बी एबल टू एंटर. ऐसा मैंने सोचा था, बट ऑन द वे मैं करते करते सीख ही गया ऑन माई नेक्स्ट जॉब. बट तो TCS में आई आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज़ कि अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है, और बहुत सब सीनियर लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और अगर मैं TCS में रहेगा तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी. तो देयर वाज सम इश्यूज जिसके लिए मैं रुका हुआ था TCS में. आई वाज डूइंग फ्रीलांसिंग कि आई नीड एन इंश्योरेंस एंड फॉर माई फैमिली, एंड उस टाइम पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था मेरी फैमिली में. तो अगर मैं उस टाइम पे छोड़ नहीं सकता था TCS. तो आफ्टर व्हेन माई ट्रीटमेंट गेट ओवर्ड, आई रिजाइन डाल दिया विदाउट एनी जॉब. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़. अराउंड 2 या 3 months के टाइम पे, मुझे नोटिस पीरियड 3 months होता है TCS में, आई वॉज रियलाइज कि मुझे जॉब्स नहीं मिल रही हैं. तो आई जस्ट फेक डेट इन नौकरी की आई वांटेड टू स्विच, एंड मेरा नोटिस पीरियड 1 month का है, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़ कि एटलीस्ट पता चले कि मेरी वैल्यू कितनी है मार्केट में. तो इंटरव्यूज़ देते देते आई गॉट लाइक ऑफर्स, एंड देन उस ऑफर पे नेगोशिएट करके आई बैक अनदर ऑफर. ऐसे करते करते मुझे 6-7 ऑफर मिल गए थे, जिसमें से 3 या 4 वर मोस्टली रिमोट. So I was able to switch from around 4.5 LP मेरे ख्याल से when I last like in TCS to 15 LP offer. This was a Web3 company and they were looking for a remote front-end engineer only, जो कि उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स की फ्रंट एंड बना सके. एंड उस रोल में मैं बहुत कुछ सीखा बिकॉज आई फाउंड अ मेंटोर हु वाज वेरी जेनरस एंड काइंड टू मी, जिसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया. एंड वो उस कंपनी में इकलौते फ्रंट एंड इंजीनियर था. व्हेन आई जॉइंड ही वाज आल्सो देयर, एंड ही उसको पता चल ही गया था आई थिंक कि मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता है. आई वाज एबल टू क्लियर द इंटरव्यूज एंड ऑल, बट ऑन पेपर मेरी थियोरेटिकल नॉलेज, मतलब आई टोल्ड यू, प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं थी. सो बट समहाउ आई वेंट इन, आई पिक्ड अप थिंग्स. 1-2 बार मेरे को लगा कि बेइज्जती हुई, पर उसके बाद मैं सीखता गया. And over the 1.5 years I worked there, I learned a lot of things about Web3. I learned a lot of things about how startup works, and it was a completely new like experience from as compared to TCS. Because TCS में तुमको एक छोटे से फीचर के लिए भी 1 हफ्ते का टाइम मिलता था, एंड स्टार्टअप इज कम्प्लीटली डिफरेंट. फिर तुमको मैंने फीचर बोला तो मैं आधे घंटे 1 घंटे बना के देना है, एंड उसके वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट सेंस, तुम्हारी कोडिंग स्किल्स, सब कुछ 10x हो जाता है. एंड यू ऑल्सो आर नाउ वर्किंग विद पीपल जो खुद ही वो बहुत तगड़े हैं.
these guys are not just random lucky person जिन्होंने बस इंटरव्यू निकाल लिया. These guys are person who have actually made good production ready apps and they are earning from it. So उस माहौल में मुझे काम करने से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली and it really helped me a lot. तो वहाँ पे when I joined at 15 LPA mark. तो उस टाइम पे I was earning like I was getting like 1 lakhs per month ऐसा करके. बट आफ्टर दैट आई गॉट प्रोमोटेड. देन मेरे को फिर 150 मिला एंड जाते जाते वहाँ तक आई वॉज गेटिंग अराउंड 2 lakhs a month जब तक मैंने वहाँ से एग्जिट किया, कंपनी से स्विच किया. द रीज़न वाई आई स्विच फ्रॉम देयर वॉज बिकॉज कपल ऑफ थिंग्स बेसिकली. फर्स्ट वॉज द आई वॉज नॉट being valued there, to be honest. I don't know, I was feeling this कि the value that I am providing और जितना मैं काम कर रहा हूँ उतने बेस पे मुझको पैसे नहीं मिल रहे हैं एंड एज कम्पेयर टू अदर पर्सन उनको मुझसे ज़्यादा ही मिल रहा है, ऑलमोस्ट 4x 5x मिल रहा है. तो मैं पैरेलली और चीज़ें देखने लग गया था एंड दिस इज़ हाउ आई got introduced to Mercor as well when I was working with this Web3 startup. पैरेलली मैंने एक Mercor के बारे में मुझे पता चला था फ्रॉम माई फ्रेंड कार्तिक ओनली एंड ही टोल्ड मी कि you can give open interviews for any role that you decide and they will judge you on the AI score. तो मैंने मेरी उस टाइम में फ्रंट एंड आता था तो मैंने अराउंड 2023 में इवन बिफोर ज्वाइनिंग द Web3 स्टार्टअप आई इंटरव्यूड देयर एंड इनके टैलेंट पूल में मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई थी एंड बहुत कम पैसे डाले थे बट उसके बेस पे ही आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स एंड मैंने बहुत सारी AI कंपनीज US कंपनी के साथ थ्रू आउट द ईयर काम किया, इंटरव्यूज़ दिए एंड बात करी. बहुत सारे मेरे रिजेक्ट भी हुआ मैं इंटरनल कंपनी से बट एटलीस्ट आई गॉट टू नो अबाउट द सेंस कि how the industry works, how people work in US and any other remote startups and in general what are the things that are being valued right now. तो ऐसे करते करते I worked with 2-3 startups through Mercor while as a part time while working with here also. So मेरे को in general idea आ गया था how to do things and how to negotiate, how to work. And when again after this when I left my Web3 startup last year around in January, around June or July, I got an offer from Mercor itself for the internal team and I joined there and now I'm working remotely as a software developer. I joined there basically in the front end but with यहाँ पे आते ही even though मेरी प्रोफाइल वॉज फ्रंट एंड बट आई स्टार्टेड ओनिंग डिफरेंट थिंग्स. तो मुझे पाइथन भी सीखना पड़ा, मुझे गोलैंग भी सीखना पड़ा, बैक एंड भी सीखना पड़ा. तो नाउ आई वर्क एज अ फुल स्टैक डेवलपर एंड आई ट्राई टू डू एज मच एज थिंग एज पॉसिबल. एंड करंटली मुझको लगता है फॉर द नेक्स्ट फेज माई नेक्स्ट स्विच वुड बी इन AI इंडस्ट्री बिकॉज मुझे AI में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, हाउ टू द एजेंट वर्क एंड हाउ टू डू द AI ऑर्केस्ट्रेशन एंड बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मैं कभी स्टैगनेंट ना बनूँ, स्किल सीखता रहूँ जहाँ पे भी मेरे को अच्छा लगता है. एंड आई शुड नॉट बाउंड माई सेल्फ टू अ पर्टिकुलर नंबर कि वो बंदे ने ज़्यादा कमाया है मेरे से, वो बंदे की स्किल्स बहुत अच्छी हैं मेरे से, वो बंदे ने मुझसे वो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन करी है या IT से है या 100 so on so forth. मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बना ली है, ऑलमोस्ट 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है. मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें काटने वाला हूँ पर आई डोंट नो कि पसंद ही आएगा लोगों को या नहीं आएगा. पर मैंने कार्तिक के साथ जब वीडियो बनाया उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए अबाउट पीपल आस्किंग मी कि भाई तुमने कैसे किया, तुमको चीज़ें कैसे मिली, तुमने कहाँ से अप्लाई करा. तो मैंने सोचा कि मैं अपने थोड़ी और जर्नी इन डिटेल बता दूँ सो एटलीस्ट पीपल हु आर आस्किंग मी इन DMs, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा था तो उनको एक आइडिया मिल जाए इससे कि मैंने कैसे स्टार्ट किया. क्योंकि एज कंपैरिजन मतलब अदर जर्नीज की जो बंदे CS से हैं उनके लिए थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि दे ऑलरेडी नो अबाउट थिंग्स. बट फॉर द पर्सन जो कम्प्लीटली नई फील्ड से है, मैकेनिकल से या नॉन टेक ब्रांच से, उनके लिए थोड़ा हार्ड पड़ता है टू गेट अ कैच ऑफ थिंग्स. या सो यही थी मेरी जर्नी. मैं एंड में थोड़ा जल्दी करा, मैंने थोड़ा अपना इनिशियल पार्ट ज़्यादा डीपली बोला. तो अगर आप लोगों को किसी को भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम लगे और कुछ जाना हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन कमेंट्स. मैं आई रिप्लाई टू एवरीवन एंड अगर जो चीज़ भी हो सकेगी मैं शायद हो सके तो वीडियो ही बना दूंगा.